टीनेजर्स जब आपकी प्यूबर्टी हिट होती है तब आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो ऑयल ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होके एक्ने करा सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, जब तक आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता तो कोशिश करिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करिए। नेचुरल चीज़ें भी आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकती हैं। In Skinspired podcast, we have learned about dermatology and skincare with renowned board-certified dermatologist Dr. Vishal Chugh. If you are really concerned about your skin, you should definitely watch this podcast. Thank you so much, viewers, for joining us. So we have Dr. Vishal Chugh, a certified dermatologist who is known for bridging the gap between science and real skincare practices. Thank you so much, sir, for being here. I am thrilled to be here and I'm happy people like Skin Inspired are coming with this kind of podcast which focus on real knowledge instead of something fake. So we'll talk about everything pertaining to skin which is genuine and science backed. With my 15 years of experience, will bring the best for you. So doctor, can you help our new viewers to understand what dermatology is and why this podcast is so important for them to watch? See, dermatology is basically a branch of science that deals with skin, hair and nail and all the conditions, diseases and treatment of which are pertaining to skin, hairs and nails. And apart from that, it also talks about skin health. See, skin health is an emerging topic these days. It overall denotes your overall well-being. So skin health is very important and everyone should know the basic hygiene of skin, what exactly skin diseases are, how to maintain your skin health. So this podcast, I believe, should be very helpful for young viewers to understand the basics of the skin. That's great, sir. So we have different kind of skin types. So it really helps when we know that we have this particular type of skin. Absolutely. In this market flooded with different products, especially youngsters, I see they use a lot of serums. So until and unless you don't know your skin type, your products are not going to be useful. So generally skin type is divided into 4 things. One, you can have a dry skin. By that I mean when you get up in the morning, you feel your face is dry, or after washing your face, you feel you need the feel to apply something. And there can be an oily skin, especially in the humid climates, your face secretes oil and it is more of an acne prone skin. There can be something like combination skin, that is basically a combination of both dry and oily. Your T-zone can be oily and the rest of the skin can be dry. And the last skin type is sensitive skin. By that I mean you have to be very careful with the products you use. Your skin may react after using certain products. So अगर आपको अपना skin type नहीं पता होगा तो जो आप products buy कर रहे हैं कि आपके skin को वो suit करेंगे कि नहीं करेंगे, that creates the dilemma. So you should know about your skin type, then only your skin products can work in the way you want to be. So doctor, I have read somewhere that dermatologists can read your skin like a book. So is it true? Yes, in fact it is. Because dermatology जो branch है, आप MBBS के बाद 3 years में उसके लिए पढ़ाई करते हो. तो you know about the skin condition, skin health. So natural dermatologist is the best person to guide you about your skin demands and your skin needs. So अगर dermatologist से आप अपना prescriptions लिखवा रहे हैं या आप अपने products लिखवा रहे हैं, तो I think they should more or less suit you. So sir, right now I have a oily skin. So ऐसा होता है कि पूरी लाइफ टाइम ही मेरा स्किन अभी ऑयली ही रहेगा कंटिन्यूएशन नो, स्किन इज अ वेरी वेरी डायनेमिक ऑर्गन. आपको शायद पता ही होगा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सी व्हेन यू हिट प्यूबर्टी तो आपके ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसके कारण स्किन ऑयली हो सकता है. बट एज यू एज, स्पेशली इन वीमेन नियर टू योर मेनोपॉज, सिंस द हार्मोनल सपोर्ट इज नॉट देयर, योर स्किन कैन गो ड्राई. So it changes depending on your age and it also depends on the weather you are in. So in Mumbai, your skin may react differently. Climate like Jaipur, it may be a completely different thing. So you just had talked about serums. So does serums really work और actual में serum के क्या benefits होते हैं? Yes, serums are in rage these days and they actually work. Serum basically क्या है? कोई भी active ingredient का concentrated form है.
तो स्किन का जो बैरियर है उसको आराम से क्रॉस कर जाता है। तो आप जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, so I use something called as hyaluronic acid serums. What are they? They are concentrated form of a moisturizer which work at a desired depth. जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए आते हैं, तो we give them vitamin C serums. So the serums are a very effective tool in skincare routine and they actually work. लिटरली इवन मैं खुद सीरम्स यूज़ करती हूँ फॉर द गुड स्किन एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अबाउट दिस थिंग। सर इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्किन प्रोटेक्शन के बारे में, और जो पहली चीज़ स्किन प्रोटेक्शन के लिए हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ सनस्क्रीन। सो डज सनस्क्रीन रियली वर्क्स, और उसके अलावा कोई और मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपना स्किन प्रोटेक्शन कर सकें? See, if you ask me one ingredient for your skin, I would vote for sunscreen. Such is the importance of sunscreen. Everyone should apply sunscreen, irrespective आपका वेदर कैसा है, आप कोल्ड में हैं या सर्दी में हैं या धूप नहीं है. Sunscreen is not about only applying it when you have sun. It is called as something called as sun protection factor. So sun protection factor basically आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है. तो आपका ये प्रोटेक्शन फैक्टर हम डिसाइड करते हैं, ये बेसिकली इससे डिसाइड होता है कि आप बिना सनस्क्रीन लगाए हुए सन को कितना झेल सकते हैं और सनस्क्रीन लगाए हुए कितना झेल सकते हैं. तो आइडियली एवरीवन शुड यूज सनस्क्रीन एंड इट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन. So doctor, our skin reflects whatever we put in. So what is the science behind this thing? सी स्किन एक बैरियर है आपका, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, बट जो चीज़ों का एब्जॉर्प्शन है वो उनके मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है. जैसे हम सीरम्स की बात कर रहे थे, उनका मॉलिकुलर वेट बहुत स्मॉल होता है, तो एक डिजायर्ड डेप्थ पे पेनिट्रेट करता है. क्रीम्स का थोड़ा थिक होता है, तो वो डिजायर्ड अलग डेप्थ होता है उनका. सो जैसे रेटिनॉल की बात करें तो हमें चाहिए उसका पेनिट्रेशन डीपर लेयर्स में हो ताकि वो कोलेजन बनाए. सो सीरम्स उसके लिए बहुत अच्छा मोड है जो आपकी स्किन के बैरियर को क्रॉस करके आपका कोलेजन रिप्रोडक्शन करा सकता है. सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट क्या डिपेंड करता है स्किन एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी. ऑन एन एवरेज स्किन एक बैरियर है, फिल्टर है, एक छलनी है. छलनी में से कुछ चीज़ें नीचे स्किन तक जाएंगी, कुछ ऊपर रहेंगी. So sir, let's move forward towards the nutrition thing. As we say that कि nutrition हमारे face पे दिखता है, जो हम खाते हैं वो हमारे face पे दिखता है. So let's talk about the nutrition. So does nutrition plays a vital role for the good skin, glowing skin? Absolutely, there is no second doubt about that. आपकी स्किन वैसे ही बिहेव करेगी जो आप इनटेक ले रहे हैं. See, we see all these celebrities, they are flaunting good skin. Exactly. Now, one major important factor behind their good skin is their good nutrition. So, nutrition plays a long role in your skin care. In fact, मैं ये बोलूँगा कि आपका स्किन केयर बाद में आता है, आपका न्यूट्रिशन पहले आता है. तो बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में, बेरीज में, नट्स में, ये आपकी स्किन की वाइटलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं. उसके अलावा अगर अपन देखें तो ओमेगा 3s हैं जो जनरली फिश में होते हैं, ये भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देते हैं और स्किन को बेटर करते हैं. तो स्पेशली आजकल जो मैं देखता हूँ, खासकर हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स का, वी आर मोर इनटू प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, दैट इज क्रिएटिंग ए हैवॉक ऑन योर स्किन. सो अगर शुगर की बात करें, हम इंडियंस बहुत फॉन्ड ऑफ हैं शुगर्स का. अगेन शुगर इज डेलिटेरियस फॉर योर स्किन हेल्थ. So what you eat reflect on your skin. So eat wisely, have a good diet, take care of whatever fresh fruits and vegetables you can take. हम एक कॉन्सेप्ट इसमें बोलते हैं रेनबो डाइट. जो भी कलर्ड फ्रूट्स हैं, जो कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, they are absolutely beneficial for your skin. So doctor, we have two specifications about sunscreen. One is SPF and second one is PA. तो किसकी तरफ हमें जाना चाहिए, किस तरह हम अपनी सनस्क्रीन को चूज कर सकते हैं? सी इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. हम जनरली सनस्क्रीन को आजकल अमूमन लैंग्वेज में बहुत सारे यंगस्टर्स यूज करते हैं. डॉक्टर आई एम यूजिंग SPF. नाउ व्हाट इज SPF? इट इज कॉल्ड एज सन प्रोटेक्शन फैक्टर. सी आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेस हैं, दो तरीके की रेस हैं, अल्ट्रावायलेट B रेस और अल्ट्रावायलेट A रेस, जो हमें सन से मिल रही हैं, जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं. तो आपका जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो आपको अल्ट्रावायलेट B रेस से बचाता है. अल्ट्रावायलेट B रेस आपके स्किन को बर्न करा सकती हैं और स्किन कैंसर्स करा सकती हैं. तो इसलिए आपका स्किन डैमेज नहीं हो तो SPF बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन एन एवरेज इंडियन सिनेरियो में हमें मिनिमम 30 SPF यूज करना जरूरी है. आप जितना SPF बढ़ाएंगे आपको प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा मिलेगा,
बट वो प्रोटेक्शन मार्जिनल होता है. से यू आर यूजिंग SPF वर्थ 60 SPF. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम 30 SPF इज 97% ऑफ UVB रेस. आप जितना SPF बढ़ाते जाएंगे तो आपको मार्जिनल इंप्रूवमेंट मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज everyone should use about 30 SPF. In Indian scenario, I would personally prefer somewhere around 50 to 60 SPF. उसके अलावा आपने बात करी PA प्लस की. सी PA इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए रेस. हम SPF की बात करते हैं तो वो UVB रेस की बात करते हैं, और PA की बात करते हैं तो UVA रेस की बात करते हैं. तो इसका जनरली अमूमन कैलकुलेशन होता है ++2 +3 +4. सो ऑन एन एवरेज हमें +3 तो मिनिमम चाहिए, जो कि एक मॉडरेट SPF हमें देता है, मॉडरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए से देता है. तो अल्ट्रावायलेट ए रेस आपकी स्किन को डैमेज करती हैं और एजिंग करती हैं. सो अब आपने SPF और PA प्लस दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन लिया तो आपकी स्किन हेल्थ ओवरऑल अच्छी हो सकती है. सनस्क्रीन की दूसरी स्पेसिफिकेशन होती है PA रेटिंग. सी PA रेटिंग इंडिकेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट ए रेस. सो आपका ऑन एन एवरेज PA रेटिंग 3+ या 4+ होना चाहिए. अल्ट्रावायलेट ए रेस बेसिकली आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, टिश्यू डैमेज कराती हैं और स्किन एजिंग कराती हैं. सो अगर आप SPF और PA प्लस दोनों अच्छी रेटिंग्स के यूज़ करते हैं तो आपका सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जिससे आपकी स्किन हेल्थ ओवरऑल बेटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Okay, doctor. So let's move towards the next topic. So we have another topic here, that is acne. So India में acne का बहुत बड़ा problem रहता है, as we can see कि everybody is facing the issue of acne. So acne और nutrition का कोई connection है? Does it really? See, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा. Not even India, it is a worldwide problem. Worldwide problem. Fine. So acne is a common condition, especially teenagers. जब आपकी puberty hit होती है तब आपके hormones secrete होते हैं, तो ऑयल ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होकर एक्ने करा सकती हैं. बट एक्ने बेसिकली बहुत सारे रीजन से होता है, लेकिन डाइट का उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जो पीपल हु कंज्यूम हाई प्रोसेस्ड डाइट, जिसमें हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, ऑयली फूड में ज़्यादा होता है, जंक फूड में ज़्यादा होता है. सो आप जब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेते हैं तो आपके एक्ने होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. सो स्पेशली हमें यंगस्टर्स को आजकल बहुत इस स्विगी जोमेटो के ज़माने में हमें समझाना पड़ता है कि आपको अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखना है, हेल्दी रखना है. जितना हो सके जंक, प्रोसेस्ड, हाई सैचुरेटेड फैट्स, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए. नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि टीनेज तक ही आपका एक्ने प्रॉब्लम रहता है या उसके बाद भी यू विल फेस द एक्ने प्रॉब्लम? सी एक्ने नॉर्मली पेरेलेंस में हम कोरिलेट करते हैं कि टीनेज में कॉमनली होता है. उसका रीज़न क्या है? वो स्टार्ट ही तभी होता है क्योंकि आपके हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है, तो बहुत सारे बच्चों को, टीनेजर्स को खासकर एक्ने हो जाता है. बट देयर इज एन अनदर सब टाइप ऑफ एक्ने विच इज कॉल्ड एज अडल्ट ऑनसेट एक्ने. खासकर आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स में, फीमेल्स में बिटवीन द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज हम देखते हैं सडनली एक्ने इरप्ट हो जाता है, तो उसको हम अडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं. उसके पीछे आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जेनेटिक्स कैन बी ए रीजन, हार्मोनल कैन बी ए रीजन, फूड हैबिट्स कैन बी ए रीजन एंड एनवायरमेंटल कैन बी रीजन. सो इट डिपेंड्स कि आपकी कौन सी एज पे एक्ने प्रेजेंट हो रहा है. तो ये जरूरी नहीं है एक्ने सिर्फ टीनेज में होता है, अडल्ट एज में भी एक्ने हो सकता है. सो डॉक्टर, आजकल की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम लोग मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, सो वो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है? यस, ऑफ कोर्स. आपका स्ट्रेस लेवल्स आपकी स्किन हेल्थ को डिटरमाइन करता है. तो जनरली स्किन और माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इफ़ यू हैव अ हेल्दी माइंड, दैट मीन्स यू आर पीस विथ योर सेल्फ, एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आपकी स्किन हेल्थ अच्छी हो सकती है. उसके अलावा बहुत सारी स्किन कंडीशंस हैं जो स्ट्रेस उनको बढ़ा सकता है, जैसे एक्ने है, सोराइसिस है, विटिलिगो है, एक्जिमा है. ये सारी कंडीशंस जब आप स्ट्रेसफुल एपिसोड में होते हैं तो आपका स्किन कंडीशंस ये और अग्रवेट हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं. सो हैविंग अ हेल्दी माइंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी स्किन. इसीलिए हम प्रमोट करते हैं योगा, मेडिटेशंस, स्पेशली पीपल जो क्रॉनिक डिजीज़ से डील कर रहे हैं, जैसे सोराइसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है. सो हम उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप जितना हो सके अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की कोशिश करें, ट्राई कीपिंग काम. उसके अलावा अगर ऐसे अपन बात करें तो जो आपकी स्किन पे दिखता है, आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है, वो आपकी स्किन, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन करता है. खासकर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ, पीपल हु हैव एक्ने जनरली दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंस. तो आपका स्ट्रेस और आपका स्किन डायरेक्टली रिलेटेड है.
तो स्किन हेल्थ इज ऑल्सो बेसिकली अ मेंटल हेल्थ, तो फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ एज वेल टू कीप योर स्किन गुड। दैट्स रियली ट्रू सर। सो आगे बढ़ते हैं। अभी मार्केट में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं और काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, तो ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है और ये इंग्रेडिएंट हमारे लिए अच्छा है? सी सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, जब तक आपको अपना स्किन टाइप नहीं पता तो कोशिश करिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करिए। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट सूट करेगा और क्या नहीं। आजकल हम सोशल मीडिया के ज़माने में आई सी मार्केट इज फ्लडेड विथ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली यंगस्टर्स दे एक्सप्लॉइट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन डू मोर हार्म टू योर स्किन देन एक्चुअल बेनिफिट। बट 4-5 चीज़ें मैं जिनसे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। सबसे पहला सनस्क्रीन, जैसे हमने डिस्कस किया। सेकेंडली मॉइस्चराइजर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, विटामिन सी को मैं बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मानता हूँ। आई थिंक वो सबको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, स्पेशली इफ योर स्किन सूट्स टू दैट। एंड अगेन विद अ डिस्क्लेमर, प्लीज आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट वेदर इट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। स्पेशली यंगस्टर्स में इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो नायासिनामाइड आपकी स्किन को काम करने की कोशिश करता है। एंड हाँ, जहाँ हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो हम रेटिनॉल्स को नहीं भूल सकते। तो रेटिनॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन, बट प्लीज visit a dermatologist to get noted what products can go on your skin and what should be your skin products to show a long run results. सो डॉक्टर, ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्किन, इफ़ द स्किन इज़ नॉट गुड, उसी को ही आप लोग ट्रीट करते हैं और वी शुड रेगुलरली विजिट द डर्माटोलॉजिस्ट फॉर द चेकअप? सी थैंकफुली ट्रेंड्स हैव चेंज दिस डेज। आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं तो लोग हमारे पास स्किन डिजीजेस ही लेके आते थे, बट आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स हमसे ये पूछने आते हैं, डॉक्टर मेरा स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। सो दैट इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस विच सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड। सो इट इज आइडली अ गुड थिंग कि आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो स्किन अब सिर्फ डिजीजेस पे फोकस नहीं करते हैं, हम स्किन हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, जो ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। सो यू सी इन द पब्लिक, पीपल हु हैव गुड स्किन, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट? सो बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर स्किन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया जा सकता है अगर आप सही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं with the consultation of dermatologist. That should go a long way. So doctor, we have gathered some questions from our followers. So the first question is, should we change our skin care as per the weather or the climate? Absolutely. Especially हम नॉर्थ इंडिया में we get a lot of transition across the weather. तो आपका स्किन डिफरेंटली बिहेव करता है। सो ह्यूमिड वेदर में, बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, स्पेशली इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, तो आपके स्किन प्रोडक्ट्स बहुत लाइट होने चाहिए। जैसे हम मॉइस्चराइजर्स जिनका ऑयली प्रोन स्किन है और ह्यूमिड वेदर में हो आप, हम चाहते हैं कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओ। अब जैसे हम नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में डील कर रहे हैं, सो योर प्रोडक्ट्स शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। स्पेशली आपकी जो क्रीम्स हैं वो थिक क्रीम्स होनी चाहिए जो हाइड्रेशन आपको ज़्यादा दे देता है। सो अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो शायद आप एक ही प्रोडक्ट्स पे स्टिक कर सकते हो, बट आपका अगर एक्सट्रीम केसेस ऑफ स्किन है तो येस, वेदर के साथ, और मैं ये भी बोलूँगा जगह के साथ भी। सी वेदर लाइक मुंबई एंड चेन्नई विच आर नियर टू द कोस्टल एरियाज, तो आपको वहाँ शायद स्किन प्रोडक्ट्स अपने थोड़े चेंज भी करने पड़ सकते हैं। तो योर स्किन इज नॉट अ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ अ डायनेमिक थिंग। सो यू मे नीड टू टाइट्रेट योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड्स। सो एज वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट स्किन टाइप्स, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग स्किन के लिए यू विल रिकमेंड टू अस? सो आई बिलीव जो सीरम्स की आजकल हम बात करते हैं, जो 4-5 सीरम कॉमन होते हैं। आपका अगर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड सीरम शुड बी अ गुड ऑप्शन। अगर आप पिगमेंटेशन को डील करना चाहते हैं और ओवरऑल स्किन को ऑक्सीडेशन लेवल से बचाना चाहते हैं तो विटामिन सी एक अच्छा सीरम है। अगर आपकी स्किन काम नहीं है, सपोज आपका रेडनेस रहता है चेहरे पे, सूथिंग नहीं है, तो आई थिंक नायासिनामाइड शुड बी अ गुड ऑप्शन। अगर मेरे जैसी स्किन है विच इज एब्सोल्युटली ड्राई स्किन, तो हाइलुरोनिक एसिड इज एब्सोल्युटली वंडरफुल सीरम। और अगर आप एंटी एजिंग कंसर्न्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं तो नथिंग बेटर देन रेटिनॉल्स। ओके डॉक्टर, सो व्हाट इज द बेस्ट स्किन केयर फॉर एक्ने प्रोन स्किन? अगेन बेसिक स्किन केयर रूटीन जो होता है, आपको दिन में 2 बार चेहरा धोना चाहिए। चेहरा धो के आप मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। सो अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो आपका जो फेस वॉश होना चाहिए, जो क्लिंजर होना चाहिए, वो बेसिकली कोई सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल उसमें हो तो वो आपके ऑयल को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। उसके अलावा आपका मॉइस्चराइजर जो होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है,
सो एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो आपका सनस्क्रीन भी जेल फॉर्मुलेशन हो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको स्किन कंसर्न फिर भी रहते हैं, आपका एक्ने प्रोन स्किन है, तो आई बिलीव सैलिसिलिक एसिड शुड बी गुड, बट प्लीज कंसल्ट अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर अप्लाइंग ऑल दिस सिरम्स। सो डॉक्टर, देयर इज वन थिंग जो कि अभी ट्रेंड में चल रही है, दैट इज कोरियन स्किन केयर रूटीन। सो वी इंडियंस, शुड वी फॉलो दैट कोरियन स्किन केयर? सी, जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा स्किन एथनिसिटी पे डिपेंड करता है, तो आपके प्रोडक्ट्स भी जो रिसर्च होता है वो उस स्किन के टाइप के हिसाब से होता है। तो हम जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट अगेंस्ट कोरियन प्रोडक्ट्स, बट आपकी स्किन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। हम इंडिया जैसे क्लाइमेट में रह रहे हैं, हमारी टाइप 4 स्किन है, और हम अपने आप को कोरियन स्किन देने की कोशिश कर रहे हैं और कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इट इज फेयर। सो वी हैव लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। अगेन, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए एंड डिसाइड करिए, instead of blindly following all these trends, Korean, Chinese and whatnot. Keep it very simple. सो डॉक्टर, करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लेकिन उसके अलावा हम क्या चीज़ कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन और भी ज़्यादा एनहांस करे? I am happy to address this question. सी, हम एक ब्लाइंडली एक रैट रेस में हैं कि ये स्किन प्रोडक्ट लगाने से स्किन ऐसी हो जाएगी। स्किन प्रोडक्ट्स डू हेल्प, बट आपको अच्छी स्किन के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours a day, दैट इज कॉल्ड एज पावर स्लीप, आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। वर्क ऑन योर बॉडी, एक्सरसाइज रेगुलरली। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपकी स्किन ओवरऑल अच्छा बिहेव करेगी। उसके अलावा डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्राई कटिंग डाउन ऑन योर शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। अगर आप एल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो यू नीड टू क्विट ऑन दैट। अगर आप अपनी स्किन अच्छा चाहते हैं, आप पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पीजिए। आई वुड रिकमेंड अराउंड 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। एंड टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, वर्कआउट, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करिए। फॉर श्योर योर स्किन विल बिहेव गुड। सो डॉक्टर, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर स्किन केयर टेक्नोलॉजी है जो आगे चलकर एक गेम चेंजर बन सकती है? सो जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी शुड बी द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कि हम देख रहे हैं स्किन केयर बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया है इंडस्ट्री। हम देखें पिछले 10 years में, तो देर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस विच हैव बीन रियली गेम चेंजर। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में रीजनरेटिव मेडिसिन, जिससे हम जीन बेस्ड स्किन केयर डिसाइड कर पाएँ कि आपके जीन्स क्या हैं और आपका वो स्किन केयर रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, तो वो आपका और ज़्यादा सेल्स को प्रमोट करके और ज़्यादा इफेक्टिव करेगा, और शायद एंटी एजिंग मेडिसिन में वो एक रेवोल्यूशन होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच दिस स्पेस, हाउ इट इज़ गोइंग टू बिहेव। ट्रू सर। सो आगे बढ़ते हैं। आजकल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में, सो वी शुड गो विद दैट और जस्ट नॉर्मली वी कैन सेलेक्ट द? शायद आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं कि इस जगह पे ये लगाइए, इस पे ऐसा करिए। Exactly. सी, we as a doctors or dermatologists are not against natural things, but you need to understand कि आप हर कोई चीज अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि आपकी किचन में जो कुछ भी है आप अपने चेहरे पे लगाते हो, बेसन लगा लो एंड सो आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। सबका पीएच अलग होता है, तो आपकी स्किन को कोई चीज सूट नहीं कर सकती, तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी किचन में है वो आपकी स्किन पे जाएगा। आजकल हम बहुत सारी रील्स देखते हैं जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की मैं ये लगाता हूँ उससे मेरी स्किन ऐसे आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल चीजें भी आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकती हैं। तो जनरली जो एसिडिक चीजें होती हैं, जैसे मैं बोलूंगा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें आप चेहरे पे नहीं लगाइए। आप बेसन लगाते हैं, आपका एक्ने प्रोन स्किन है, या आप कुछ मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, आपका एक्ने प्रोन स्किन है, तो आई एम ओके विद दैट। बट आप गाजर काट के, नींबू काट के, टमाटर काट के चेहरे पे लगा रहे हैं, तो आपकी पीएच को डिस्टर्ब करके स्किन को रिएक्ट कर सकता है। सो आई वुड पर्सनली अवॉइड यूजिंग सो कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, बिकॉज इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, जैसे हमने बात करी थी सेंसिटिव स्किन भी होती, तो फॉर श्योर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रू सर। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो वापस मैं आपसे सीरम्स के टॉपिक पे आना चाहूँगी। सो ऐसा बोला जाता है कि जितने ज़्यादा आप सीरम्स फेस पे लगाओगे, योर स्किन विल ग्लो एंड योर स्किन विल बी बेटर। सो इज इट ट्रू? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये एब्सर्ड कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? प्रोबेबली ये इंस्टाग्राम जनित है। सो वी सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स कमिंग टू अस कि डॉक्टर मैं दिन में ये लगा रही हूँ, दोपहर को ये लगा रही हूँ, रात को ये लगा रही हूँ। नो, योर स्किन डजंट नीड सो मच ऑफ सीरम्स। आप ओवरडू करोगे तो आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। कीप योर स्किन केयर बिल्कुल सिंपल।
अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके आप डिसाइड करवा सकते हैं कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है। जैसे मैं यहाँ एक सिंपल सा इंस्टेंस देना चाहूँगा, जैसे विटामिन सी सबके लिए नहीं है। अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या आप कोई स्किन कंडीशन जिसको हम रोजेशिया बोलते हैं से डील कर रहे हैं और आप विटामिन सी लगा रहे हैं, तो आपके स्किन पे और ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आप जितने सीरम्स यूज़ करेंगे आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी, बट आपको सही सीरम कौन सा है प्रॉब्ली आपके स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके आपके स्किन के लिए डिटरमाइन करना जरूरी है। So, doctor, what is that one takeaway you want to share with our viewers from this whole podcast? So my suggestion to all of you will be, don't get confused by seeing all this Instagram material. Keep your skincare routine very simple. If you are confused, please see a certified dermatologist. But skincare को आपको complicate नहीं करना है, जितना simple रखोगे उतना better है। 3 layer, 4 layer, 5 layer skincare routine should be more than enough. So I personally believe washing your face twice daily, applying a moisturizer and a sunscreen is mandatory for everyone. और रात को आपके स्किन कंसर्न्स के हिसाब से कोई सीरम हो सकता है, तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर स्किन प्रोसेस। दिस स्किन प्रोडक्ट्स कैन एनहांस योर स्किन वाइटलिटी एंड स्किन रेडियंस, सो प्लीज सी अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर जंपिंग ऑन टू स्किन प्रोडक्ट्स। So thank you so much doctor for sharing your valuable insights. I hope कि हमारे viewers को इस podcast से काफ़ी कुछ स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने को मिला है। Pleasure was all mine. Educating people about skincare routine and skincare products is our priority as a dermatologist as well. And I'm happy Skin Inspired has come with such a nice initiative of educating people what is right and what is science backed instead of blindly following the trends. Thank you so much, sir.